معزز سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر ریاض احمد اپنے پروگرام میٹ دا ونرز کے 8ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتے ہیں۔ اب حضرات کو معلوم ہی ہوگا کہ یہ پروگرام ہم کس وجہ سے کرتے ہیں۔ اس کے صرف دو ہی مقصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مختلف زندگی کے مختلف شعبے میں بہت سارے کامیاب لوگ ہیں جن سے تمام لوگ متعارف نہیں ہیں۔ میں اس پروگرام کے حوالے سے میرا مقصد یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو پبلک ڈومین میں ان کا تعارف کرایا جائے۔ ایک مقصد تو یہ ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ان کامیاب لوگوں کی زندگی کی جو کہانیاں ہیں اس سے ہمارے جو موجودہ جو طالب علم حضرات طالب علم ہیں اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک، ان تمام کو ان کی زندگی کے جو مراحل جو انہوں نے طے کیا ان سے جو سبق ملتے ہیں، اس کے حوالے سے میں ان کو متعارف کرانا چاہتا ہوں۔ اسی دو مقصد کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ آج ہم 8ویں ایپیسوڈ کر رہے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آج بھی ہم نے ایک بہت ہی مشہور و معروف شخصیت کو آپ کا تعارف کرانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پچھلے ہمارے ایپیسوڈ میں جو لوگ تھے، آپ کو پتہ ہی ہوگا، اس میں مختلف کمپیوٹر سائنس کے تھے، انجینئرز کے تھے، اور اسی طرح سے آپ کے جو ہے جیوگرافی کے تھے، اکانومسٹ تھے، وغیرہ وغیرہ مختلف شعبوں سے تھے۔ آج جن ہستی کو میں نے بلایا ہے اور جن کو میں نے یہاں دعوت دیا ہے اور آپ سے تعارف کرانا چاہتے ہیں، وہ پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی بہت ہی مشہور اور معروف ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے اردو زبان و ادب سے ہے، اور یہ اردو کے پروفیسر ہیں۔ تو تھوڑی سی ان کے حوالے سے میں آپ کو تعارف کراؤں، پھر اس کے بعد جو ہے میں آگے جو ہے ہمارا جو فارمیٹ ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو اس میں جو ہے آپ یہ جان لیں کہ جس شخصیت کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا وہ اور کوئی نہیں ہے، ان کا نام ہے جناب صفدر امام قادری۔ صفدر، ویلکم ہے سر آپ کا اس پروگرام میں۔ آپ جو ہے بہار کے ضلع مغربی چمپارن کے ضلع کے ایک گاؤں جو ہے بیتیا یا شہر کہہ لیجیے، وہاں سے ان کا تعلق ہے، لیکن ابھی نوکری کے حوالے سے یہ پٹنہ میں مقیم ہے۔ اور پٹنہ میں یہ کالج میں رہتے انہوں نے، چونکہ اکیڈمیشین ہیں، ان کی ساری سرگرمیاں اکیڈمکشن والی رہی ہیں، تو اس میں سب سے اول جو مقام ہے اکیڈمک کی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ ہے ان کا ریسرچ سے وابستہ ہونا۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ انہوں نے کالج میں رہتے ہوئے مگدھ یونیورسٹی کے بہت سارے طالب علموں کو ریسرچ اپنے انڈر کروایا ہے، جن کی تعداد کم سے کم درجنوں کی ہے، اور وہ اس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اس کے علاوہ ان کی بہت ساری ادر اکیڈمک ایکٹیویٹیز بھی رہی ہیں، جس میں جو ہے یہ یونیورسٹی کے اکیڈمک ایڈوائزر رہے ہیں، تھیسس کے ایگزامنر بھی رہے ہیں، کریکولم بھی انہوں نے بہت سارے بنوائے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹ بک جو ہے نصابی کتاب سے کہتے ہیں، اس کو بھی انہوں نے ڈیولپ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سارے، میں اس کو ایڈمٹ کر لوں۔ اس کے علاوہ ان کی سرگرمیاں اور بھی رہی ہیں، مثلا جو ہے پبلیکیشن جو عام خصوصیات ہوتی ہیں ایک اکیڈمیشنز کا، تو پبلیکیشن کے حوالے سے اگر تذکرہ کیا جائے تو انہوں نے کم سے کم 20 سے زیادہ ان کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں ہیں جو بہت ہی مشہور معروف ہے۔ میرے خیال میں اب تو ان کی تعداد 30 تک پہنچ گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ سینکڑوں آرٹیکلس یہاں وہاں انہوں نے لکھی ہیں۔ ان کے سب سے اہم خصوصیات یہ رہی ہیں کہ صرف اردو میں نہیں انہوں نے لکھا ہے، ان کے تخلیقات اردو، انگریزی اور ہندی میں بھی ہے۔ یہ ان کی اہم خصوصیات ہے جو دوسرے اردو داں کے حوالے سے نہیں ملتا، بہت کم پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے جرنلس ہیں، ان کے ایڈیٹر رہے ہیں، ایڈوائزر بھی رہی ہیں، ایڈیٹر ان چیف بھی رہے ہیں، تو یہ بھی ان کی سرگرمیاں رہی ہیں۔ یہ ان کا ایک ایڈیشنل تاج ہے۔ ایڈیٹر بننا کوئی آسان بات نہیں ہے، لوگ اس مقام پر پہنچتے ہیں تبھی جا کر کے ایڈیٹر بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی تعلیم کے، اپنی علمی صلاحیت کے جھنڈے ملک سے بیرونی ملک میں گاڑے ہیں، اور وہ انہوں نے کیا ہے سیمینار اٹینڈ کر کے، جس میں مختلف ملکوں میں مثلا خصوصی طور پر دوحہ، قطر، کویت، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، فرانس، اٹلی، ان تمام ملکوں میں انہوں نے اپنے مقالے پڑھے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ورکشاپ بھی آرگنائز کیا ہے اور مشاعروں بھی شرکت کرتے رہے ہیں۔
यहाँ बात यहीं तक नहीं खत्म होती है, इनको बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है, जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बिहार उर्दू एकेडमी ने दी थी, मेंबर सेनेट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी पटना एंड BRA बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से भी इनको अवार्ड मिल चुका है। शाद अजीमाबादी एंड काजी अब्दुल वदूद अवार्ड फॉर लिटरेरी अचीवमेंट्स भी को भी इनसे नवाजा गया है। डायरेक्टर एकेडमिक अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार पटना, यहाँ भी इनको अवार्ड से नवाजा गया है। डायरेक्टर बज़्म सदफ इंटरनेशनल पटना, ये जो है इनके डायरेक्टर रहे हैं। वर्कड एज ए चेयरमैन ओरिएंटल लैंग्वेज ग्रुप SCERT गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इसके अलावा वर्कड एज ए मेंबर टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी, ये बहुत बड़ी बात है। NCERT एक मशहूर मारूफ और मोतबर किताब है, इससे भी वाबस्ता रहे हैं। ये उनकी जो है एकेडमिक जो थोड़ी सी बातें जो मैंने आपको बताई, लेकिन मजीद बातों मजीद और जानने के लिए अब मैं बराह रास्त उनसे मुखातिब होता हूँ और उनसे बातचीत करेंगे। इन बातचीत के जरिए ही उनसे मजीद बातें हमको मालूम होंगी, जो हमारे जो सुनने वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो सर जनाब सफदर इमाम कादरी साहब, अब हमारे फॉर्मेट के हिसाब से मैं आपसे कुछ सवालात करूंगा और उसका जवाब जो है आप तफसील में देंगे, क्योंकि तफसील की ज़रूरत है। बच्चे लोग सुनेंगे तभी जाकर के सीखेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो मेरा होगा कि आप इस मुकाम पर पहुंचे तो उसमें आपके ख़ानदानी पस मंज़र का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ज़रा उस हवाले से कुछ बात हमें बताएं। बहुत लोग मुंतज़िर हैं और सुनने के लिए बेताब है। ओवर टू। शुक्रिया रियाज साहब, आपने बहुत ही बुनियादी सवाल से ये बातचीत शुरू की है जी कि मैंने जो पढ़ा लिखा या आज तक मैं जहां पहुंचा हूं, तो इसमें हमारे खानदानी पस मंजर का क्या रोल है। तो खास तौर से मैं बताना चाहता हूं कि मैं जहां पैदा हुआ और मेरी जहां परवरिश हुई, वहां इल्म व अदब में ही काम करने वाले लोग ज्यादा थे। माशाअल्लाह। मेरे वालिद अगरचे पेशा उनका वकालत था, आजादी से पहले वकालत हमारे तालीमी निज़ाम में सबसे ऊपर का पेशा माना जाता था। तो जो लोग सबसे ज़हीन होते थे, सबसे बेहतर पढ़ने वाले होते थे, वह लोग उस पेशे को अपनाते थे। तो उन्होंने वो पेशा अपनाया। उन्होंने फारसी पढ़ रखी थी, उसके अलावा वो शायर, अदीब, मुअर्रिख थे और इन सब तमाम कामों में वो शरीक रहते थे, किताबें लिख रहे थे। तो मैंने जब अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि किताबें लिखने वाले, मजमून लिखने वाले, और हमारे घर पे भी मुशायरे होते थे, शेरी नशिस्तें होती थी और बड़े बड़े अदीब शायर। उस जमाने में ये भी था कि उस जमाने में जो शायर अदीब कहीं सफर करते थे, कहीं जाते आते थे, तो वह किसी होटल में नहीं ठहरते थे। होटल में ठहरना मायूब बात थी, तो लोग अदीबों शायरों के घर पे ठहरते थे। तो हमारे घर पे बड़े बड़े अदीब आते थे, ठहरते थे और उन्हें मैंने देखा है बहुत करीब से, चाहे वो सुहेल अजीम आबादी हो, वामिक जौनपुरी आए तो घर पे ठहरे और हमने स्कूल के जमाने में देखा। तो ये ऐसे माहौल में परवरिश हुई जहां किताबें लिखने वाले, मज़ामीन लिखने वाले, शेर कहने वाले और किताबें तैयार करने वाले लोग आते जाते रहते थे। तो यह ऐसा लगा कि ये यूं तो बड़ा ये इलाका बहुत बड़ा है और इसका एहतमाम बहुत होता है, मगर मेरे लिए ये इतनी आम बात थी कि मैंने तो दूसरी तीसरी जमात से अदीबों शायरों को इतना देखा जिनको किताब में पढ़ा, उनसे मुलाकात हुई, उनकी खिदमत करने का भी मौका मिला। तो एक इंस्पिरेशन इससे मिला कि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ और वहाँ ही इस बात का बीज मौजूद है कि अगर उस काम को अपनाया जाए, अपनी जिंदगी में शामिल किया जाए, तो कामयाबी मिल सकती है और कोई बड़ा काम हम उसमें अंजाम दे सकते हैं। तो सर आपके इस बात से एक आपकी बात से ये यहाँ से ये थ्योरी डेवलप करता है कि भाई जैसा माहौल अगर इंसान को मिले तो उस माहौल में उस काम को करना आसान हो जाता है। क्या आप इस बात को इसकी बात की वकालत करते हैं?
मुझे तो लगता है कि आसान हो जाता है या समझने का मौका मिलता है। होता क्या है कि हम जिस पेशे को जाते हैं तो सुनी सुनाई बातें ज्यादा होती हैं। किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अगर सामने नहीं है तो वो सुन रखा है उसने कि दुनिया में इसकी बड़ी इज्जत है, अहमियत है। लेकिन मैंने जिस शोबे को चुना वो तो सब देखा भाला था, और हमने देखा कि कैसे अदीबों शायरों की कद्र होती है, अहले इल्म की क्या समाजी अहमियत है। उस जमाने में वाकई बहुत अहमियत थी। तो जब देखा तो हमको लगा कि अब किसी दूसरे मैदान में जाने की जरूरत ही नहीं है, और इसी को पहला ख्वाब बनाया। और अल्लाह का फजल है कि मरहलावार इसमें आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते गए। फिर दरसो तदरीस का पेशा हाथ आ गया। वो भी पहले ही जो पहली दरखास्त दी उसी में वो दरसो तदरीस का पेशा भी मिल गया। और फिर लगा कि जिंदगी में किसी दूसरी तरफ मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, यही काम करते जाइए। तो आपने सर वो स्कूल अपने उस गांव में स्कूल में पढ़े या पटना आकर के पढ़ा? कहाँ से तालीम हासिल किया आपने, स्कूली तालीम आपका? नहीं, तालीम तो हमारा बेतिया वो पहले सब डिवीजन था। हम लोग जब पैदा हुए तो सब डिवीजन था, बाद में वो मगरबी चंपारण बना और उसका सदर मकाम हुआ। गांधी जी की तहरीक हम जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह, तो उसकी वो जमीन रही है। तो इसलिए वो भले सब डिवीजन था लेकिन इतनी शोहरत थी, और हिंदुस्तान की जो जदीद हिंदुस्तान की तारीख है उसके बगैर, उस जगह और वहाँ की तहरीक के बगैर वो मुकम्मल नहीं हो सकती है। तो इस वजह से वो शहर अच्छा खासा था। मेरे वालिद भी फ्रीडम फाइटर थे, इस वजह से भी बहुत सारे जंग आजादी के मुजाहिदीन को भी देखने का मौका मिला। तो वहाँ एक मेरे वालिद ने और अपने कुछ दोस्तों से मिलकर एक स्कूल कायम किया था। जब आप अगर बिहार में एजुकेशन की, मॉडर्न एजुकेशन की तारीख पढ़ेंगे तो बिहार में जो पुराना बिहार है उसमें रांची और बेतिया दो ऐसी जगह थी जहां क्रिश्चियन मिशनरीज ने 18वीं सेंचुरी में काम करना शुरू कर दिया था, और 19वीं सेंचुरी में तो उनके स्कूल्स कायम हो गए थे। तो लेकिन उर्दू स्कूल कोई नहीं था, ये बड़ा मसला था। तो एक उर्दू हाई स्कूल कायम हुआ था। हम लोगों ने, मेरे 5 भाई हम लोग थे, मेरे वालिद ने अपने तमाम बच्चों को बारी बारी उसी स्कूल में दिया, और उसी स्कूल से हम लोगों ने उर्दू मीडियम में तालीम हासिल की। फिर वहां से हम भागलपुर यूनिवर्सिटी चले गए, वहां हमने ISC किया। फिर बिहार यूनिवर्सिटी आया, और बिहार यूनिवर्सिटी से फिर MJK कॉलेज बेतिया से BA किया। अल्लाह का फजल रहा, वहाँ यूनिवर्सिटी के हम टॉपर हुए। फिर MA किया, वहाँ भी टॉपर रहे, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिली। फिर बिहार यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। उसी जमाने में तब तक मुलाजमत मिल गई, और वहाँ से पटना चले आए। और फिर 1992 से अब 30 बरस पढ़ाते हुए हो गए। तो 30 बरस से अब पटना में रहना हुआ, और यहीं अब मुलाजमत के साथ साथ अब मुस्तकर भी यही शहर हो गया। तो ये छोटी सी मेरी जिंदगी है, और इसमें मैंने सर ये देखने में बात आती है कि जब लोग जो है पूरी मेहनत काविशों के बाद जब नौकरी हासिल करते हैं तो फिर आराम, बस ड्यूटी आना और जाना, और इतने ही तक उनकी सरगर्मियां होती हैं। वो दूसरे सरगर्मी में शामिल नहीं होते, कौम के बारे में नहीं सोचते। लेकिन आपका जो मैंने अभी जो ये देखा, CV देखा, तो उसमें आपने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसको आप अपनी जात के लिए नहीं किया, आपने समाज के लिए और जो है उर्दू अदब के लिए आपने किया। तो आप क्या महसूस करते हैं कि बकिया लोग जो ऐसा नहीं करते, उसके हवाले से आप अपनी राय रखिए कि कौन सी चीज थी जिसने आपको मोटिवेट किया इतना काम करने के लिए? आपका भी पेशा चूंकि टीचिंग है, तो टीचिंग पेशा के सिलसिले से जब बात होती है, हर पेशे की कुछ खूबी कुछ खामी होती है। तो खास तौर से जो अफसरों से बात कीजिए, कभी बहुत सारे अफसर हैं जो हमारे पढ़ाए हुए हैं, तो उनकी नजर में होता क्या है कि ये बहुत ही पैसिव शोबा है। कोई टीचर एक मजमून किसी ने मुंतखब कर लिया, 4 किताबें उसने चुन ली, और पूरे 35 बरस तक उन्हीं 4 किताबों को पढ़ाते रह गया। ये एक हम लोगों की। फिर हमारी जिंदगी है कि 10 से 5 में खत्म हो जाती है। हम यूनिवर्सिटी गए, 2 क्लास या 1 क्लास पढ़ाया और चले आए। तो आमतौर से हम सब लोगों की जिंदगी ऐसी ही होती है। मगर एक मुझे फायदा मिला कि मेरे वालिद पेशा उनका वकालत था। तो वकील की बड़ी मसरूफ जिंदगी होती है। और उसके पैरेलल उन्होंने 2 और काम किए। एक तो सोशल एक्टिविटीज उनकी बहुत थी, और तीसरे ये था कि वो मुसन्निफ थे।
وہ باضابطہ شاعری کرتے تھے, شعری مجموعہ ان کا کئی ہے. اس کے علاوہ وہ تاریخ کی کتابیں لکھ رہے تھے, تذکرے لکھ رہے تھے, جس میں فیلڈ ورک بھی تھا. تو وکیل کو ایک سنڈے کی چھٹی, اور وہ ہر سنڈے کو کسی نہ کسی گاؤں میں, وہ چمپارن میں تحریک آزادی کی تاریخ لکھ رہے تھے. تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ فجر کے لیے جو اٹھتے تھے, اس وقت سے لے کر 12 بجے رات تک کبھی چین سے بیٹھے نہیں دیکھا. صبح اٹھے تو وہ اپنے موکلوں میں لگ گئے. پہلے گئے وہ نماز پڑھنے, نماز پڑھ کے اپنے والدین کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے گئے, وہاں سے آئے, قرآن پڑھا, پھر اپنے موکلوں میں لگ گئے, پھر اسی طرح سے پھر کچہری چلے گئے. کچہری سے لوٹے تو کچھ سوشل ایکٹیویٹیز تھی ان کی, کچھ یتیم خانہ تھا, مدرسہ تھا, وہاں کے رکن تھے, تو روزانہ وہاں گئے, کچھ ادبی پروگرام میں گئے, اور آ کر پھر بیٹھ کے عشاء کے بعد بیٹھ کے اپنے جو ادبی کاموں کا وہ بکسا نگاہ کھولا, اور اس کے بعد کام کرنے لگے. تو ایک تو گھر میں ہی مجھے موقع ملا کہ ورکنگ آور کافی بڑا تھا میرے والد کا, جس سے ہم کو سیکھنے کا موقع ملا کہ زندگی تو سب کی 24 گھنٹے کی ہے. تو 24 گھنٹے میں یا تو آپ 8 گھنٹہ سو لیں, 10 گھنٹہ سو لیں. ایسے ہمارے بیچ لوگ ہیں جو 2 بار سوتے ہیں, دوپہر میں بھی سوتے ہیں اور رات میں بھی سوتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ نہیں, زندگی میں سونے کا تو وقت جب اللہ اٹھا لے گا تو پوری زندگی اس کو سونا ہی کہتے ہیں, حتمی طور پہ سونا ہوگا. تو اس وقت وہ نیند کا حصہ پورا کریں گے, لیکن اپنی زندگی میں نہ کریں گے. اور اللہ کا فضل ہے کہ جو یہ وقت میرا بڑھا تو ہم نے خوب بچوں کو پڑھایا. اور بہار کیا, ہندوستان کی کون سی ایسی یونیورسٹی ہے جس میں ہمارے 4 طالب علم ریسرچ نہ کر رہے ہیں, کوئی پڑھا نہیں رہا ہو. اور یہ ہر جگہ یہ ہمیں سہولت ملتی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ان کو پڑھانے میں دیں, اور کوشش کی کہ اس کے علاوہ جو موقع ملے تو اس میں ہم لکھنے پڑھنے کا کام کریں. سر وہ میری کوشش یہ صحیح کہا آپ نے, جسٹ یہ وراثت کو آگے بڑھانے کا عمل جو ہے سب کے نصیب میں نہیں ہوتا ہے. آپ نے جو ہے اپنی وراثت کو آگے بڑھایا. بہت سارے لوگ ہیں وراثت ان کے ریورس ڈائریکشن میں چلے جاتی ہے. آپ الحمدللہ خوش نصیب رہے, اور پھر آپ کے اندر وہ عزم ارادہ تھا, اور آپ نے اپنی وراثت کو آگے بڑھایا. میں جب آپ کے پورا سی وی دیکھ رہا تھا, آپ نے کم سے کم 30 سے زیادہ کتابیں لکھی, پھر آپ نے 100 آرٹیکلس لکھے. اگر اس کو آپ جو خالی پیج میں آپ کنورٹ کریں تو آپ سمجھ لیجئے 200 پیج کی اگر کتاب رکھ لیں تو 6000 صفحے کی کتاب لکھیں اپنی, پھر اس طرح سے آرٹیکل لکھیں. یہ سب اتنا لکھنا, پھر اس کے علاوہ اس پر ریسرچ کرنا, ایسا ہی تو کوئی بیٹھ کر لکھ لیتا ہے. تو آپ نے زندگی کا بیشتر حصہ آپ نے لوگوں کے لیے صرف کیا, اور یہ جو ہے ایک سعادت کی بات ہے. اور پھر وہی کر سکتا ہے جس کے اندر وہ لگن ہو, اور ان کو یہ خواہش ہو کہ ہم جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیا دوسروں تک پہنچائے. آپ کو مبارکباد ہے میری طرف سے اس حوالے سے کہ آپ نے جو ہے اس طرح کا کام انجام دیا. ورنہ دیکھنے میں تو ایسا آتا ہے کہ بس لوگ اپنی ڈیوٹی جاتے ہیں. ہمارے یہاں کہاوت ہے مغرب بنگال میں کہ آتے ہیں اور جاتے ہیں, اسی کا پیسہ لیتے ہیں, کام کرنا ہے تو پیسہ دو. یہ ہے. لیکن آپ نے ماشاءاللہ اپنی وراثت کو آگے بڑھائی. یہ نصیب کی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے آنے والے نسل کو بھی ایسے ہی جذبے دے جس سے اور بھی لوگوں کو فائدہ ہو. سر میں نے یہ بھی دیکھا آپ کے اس میں کہ آپ نے اردو تنقید نگاری میں بھی آپ کا نمایاں مقام ہے. آج کے دور میں جو تنقید نگار ہے اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے, یہ سوال بہت مشکل ہے مگر اس کا جواب دیا جانا چاہیے, اور میں دینا چاہوں گا کہ بنیادی حیثیت اگر ہم نے کچھ لکھا پڑا ہے تو تنقید نگار کی ہی ہے, اور سب سے زیادہ کام اسی موضوع کے ارد گرد کیا ہے, اور کوشش کی ہے کہ ایمانداری سے اپنی بات رکھ سکوں. نقاد کی حیثیت سے میں نے ہمیشہ چاہا کہ ایک تو علمی گہرائی ہو, ہماری تنقید جو ہے اس میں تحقیق کا عنصر بھی ہو, اور جو باتیں کہی جائے وہ محققانہ طور پر درست ہوں. اس کے علاوہ میں نے کوشش کی کہ جب نقاد کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو نقاد کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے,
تو फैसला जब करें तो बेलाग फैसला हो और इसके लिए तैयार रहें। नक्काद को किसी की दिलजोई करने के लिए तनकीद नहीं लिखनी है, बल्कि उसको अपनी बातें साफ साफ कहनी चाहिए। तो मैंने कोशिश की है कि साफ साफ बातें की। इसी वजह से हमारे जमाने के जो नक्काद हैं उन पर बड़ी हमने जहां जहां जरूरत पड़ी तो बड़ी सख्ती से निगाह डाली और कोशिश की कि उनकी जो खामियां हैं या उनके जो अपने असरी खेल तमाशे हैं उनको भी रोशन किया जाए। इस वजह से थोड़ी मेरी पहचान भी है कि भाई ये सख्तगिरी से फैसला लेते हैं और फैसला लेने में कभी ये नहीं सोचा कि हम शम्सुर रहमान फारूकी के बारे में कह रहे हैं या गोपीचंद नारंग के बारे में कह रहे हैं। हमें जो कहना है वो साफ साफ कहेंगे और कोशिश की। आज के अब जब तनकीदी मंजरनामा हम देखते हैं तो तनकीदी मंजरनामा उतना रोशन नहीं मालूम होता है। हमारे नक्काद हैं, लेकिन नक्कादों में एक तो बड़ी दिक्कत हो गई कि शोबे उर्दू में वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग बहुत आ गए और दूसरा ये कि बड़े नक्कादों के कैंप फॉलोअर्स ज्यादा हो गए। इसकी वजह से होता क्या है कि कोई साफ साफ गोपीचंद नारंग की हुदूद क्या है, खामियां क्या है, शम्सुर रहमान फारूकी की हुदूद क्या है, अतीकुल्लाह की हुदूद क्या है, अबुल कलाम कासमी की हुदूद क्या है, इसको बताने के लिए ठीक से तैयार नहीं। एक आप मजमून इस पर जो मजमून लिखेगा या तो दुश्मन की तरह से लिखेगा और चूंकि उस दूसरे कैंप का वो नक्काद है तो या कोई फायदा है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, वक्ती तौर से कोई फायदा लेना है, किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को 4 सेमिनार में दावत चाहिए, किसी को साहित्य अकेडमी अवार्ड चाहिए। तो यह जो हमारे नक्काद इस नरगे में घिर गए और इस वजह से हमारे नक्कादों की बातें साफ साफ और सच्ची खरी सामने नहीं आ रही हैं। आज कलीमुद्दीन अहमद की तरह से साफ गोई हमारी तनकीद से तकरीबन गायब है। आज मुआनदाना तनकीद होती है कि हमारे आप अगर हमारे कैंप के आप नहीं है तो आपकी दुश्मनी हमसे होगी, आपकी तनकीद खराब है, कमजोर है, और आप अगर हमारे कैंप के हैं तो आपने बिल्कुल आसमानी किताब पेश कर दी है और उसकी उसी अंदाज से तारीफ होगी। मतन पर बहस करने वाला और मतन के दायरे कार को समझने वाला और उसकी हुदूद को समझने वाला एक नक्काद अभी हमारे मंजरनामे पे नजर नहीं आता है। जो आते हैं वो आधे अधूरे लोग हैं। अफसोस तो ये है कि अब गोपीचंद नारंग की गालिब पर किताब आई, उस पर 20 मज़ामीन लिखे गए, लेकिन कोई बता दे कि उसके मतन पर कोई ऐसी बहस उसमें है वो जिसने तय किया कि हमने तारीफ करनी है तो तारीफ करेंगे। यही हाल शम्सुर रहमान फारूकी की किताबों का हुआ और आज तो ये हाल है कि बड़ी किताबें जो लिखी जा रही हैं वो अनअटेंडेड रह जा रही हैं। जो कीमती किताबें लिखी जा रही हैं उनको ठीक से पढ़कर लिखने वाला कोई नहीं है। शम्सुर रहमान फारूकी ने 4 जिल्दों में शेर शोरंगेज लिखी, लेकिन कोई बता दे कि उस पे 100 सफ़ा भी किसी ने, भाई 3000 सफ़े की किताब है तो 100 सफ़ा तो कोई उस पे जिरह करे और बताए कि उसका क्या वो किताब अपने अहद के लिए कामूसी किताब है या उसमें भी कोई वैसी खामियां हैं, कमियां हैं, मगर नहीं कोई कर रहा है। और अक्सर लोग चूंकि जिस पर लिखना है उससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इसकी वजह से उर्दू तनकीद का मेयार आज मुतजलजल है और बार बार अफसोस होता है कि हम जिस जबान में काम कर रहे हैं उसके लोग तनकीद का जो मिजाज होना चाहिए, तनकीद के लिए जो साफ सुथरा बेलाग मिजाज होना चाहिए, उस मिजाज का फुकदान उनके यहाँ है। ये बड़ा अफसोसनाक है। सर आपने बहुत वजाहत से तमाम बातें बताई, लेकिन सर एक बात यह है कि उर्दू को लोगों ने मुसलमानों से जोड़ दिया है। नतीजे के तौर पर जैसे आपने तनकीद नगारों जिनके बारे में तनकीद लिखी जाएंगी उनकी तादाद भी अब बहुत कम है। आप पढ़ने वाले लोगों की तादाद भी जो है बहुत बढ़ गई है। नतीजे के तौर पर इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ कि ऐसे ज्यादा लोग नहीं बढ़ पाए जिनमें जो लोगों का डाइवर्शन हो, इनको छोड़ के उनके बारे में भी कुछ तनकीद की जाए। तो जब महदूद लोग जब हो जाएंगे और तादाद लोगों के जो है बढ़ जाएगी तनकीद नगारों के, नतीजतन जो है ये लॉबी का बनना थोड़ा सा मतलब आसान हो जाता है। और फिर इसके अलावा जैसे आपने कहा कि वेस्टेड इंटरेस्ट की बात है
تو ویسٹڈ ان اب ہماری کتاب جو ہے چھپنی چاہیے اردو اکیڈمی سے, وہاں سے ہم کو کچھ ملنا چاہیے. تو اس طرح کی باتوں سے بھی لوگوں کو ہمت افزائی ہوئی ہے کہ اپنے جو فن کو ہے جو گرانے میں ان کو ذرا بھی کسی طرح کی کوئی مطلب محسوس نہیں ہو رہی ہے. یعنی ایسے لوگ کی کمی ہے, بہت زیادہ کمی ہوگی, جیسا آپ نے بتایا کہ کہہ دیتے ہیں حسینوں کے منہ پر بھلا برا کہتا ہے آئینہ کہ نہیں ڈرتے کسی سے ہم. تو اس طرح کے لوگ جو ہے کہ بہت کمی پائی ہے. لیکن اس کی خاص وجہ ہے, سر وجہ میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے, میں نے جو محسوس کیا ہے, کیونکہ جن لوگوں پر تنقید کی جائے, یہ جو نمایاں مقام پر لوگ ہیں, ان کی تعداد بھی بہت کم ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی کبھی بھی جو بڑے لوگ 2-4 ضب ہو جائیں گے تو ان کے اندر یہ جو ہے گروپزم آسانی سے بن جاتا ہے. آپ دیکھیں شاعروں کے بھی گروپ ہیں, ایک مشاعرہ ہوتا ہے تو اس میں اس گروپ کے لوگ شاعر جاتے ہیں, دوسرے گروپ کے نہیں جاتے ہیں. تو یہ جو ہے لازمی ہوتا ہے. اب ان تمام حالات کے باوجود آپ کی رائے میں ایک مزید مشورہ کیا ہے کہ جہاں سے کوئی صورت بننے کی نظر آئے, کچھ نکل پائے؟ مطلب اگر صرف ہم یہی کہتے رہ جائیں گے کہ ایسا ہو رہا ہے اور اس کی کوئی صحیح نہ کی گئی کہ اس کو قوم کو یہاں سے نکالا جائے, تو پھر یہ چلتا ہی رہے گا, بڑھتا ہی جائے گا. کیونکہ برائی جو ہے اس کو بڑھنے کے لیے ریٹ بہت تیزی سے ملتا ہے. اچھائی کے لیے جیسے کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ اگر آپ جو ہے کہ باغ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے باغ کے لیے پانی دینا ہوگا, بہت محنت کرنی پڑے گی. اور جنگل پیدا کرنا چاہتے ہیں تو بس چھوڑ دیجئے. تو اگر ہم اس قوم کو اس سے نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا محنت کی ضرورت ہے؟ سر تھوڑا سا آپ جو ہے اپنے میرے سننے والوں کو, سامعین کو بتائیں کیا کچھ کیا جانا چاہیے. دیکھیے جو 20ویں صدی میں آزادی کے بعد جو ہندوستان میں ڈیولپمنٹ ہوا ہے, آزاد ہم تو ہوئے, اور 1947 کے بعد دیکھیے گا پورے ہندوستان میں برصغیر میں شعبہ اردو بڑی تعداد میں قائم ہوئے. پہلے ہمارے ادیب شاعر جو ہوتے تھے اور جو نقاد ہوتے تھے, اس میں شعبہ اردو کے شرکاء تو ہوتے تھے مگر اس کے باہر کے لوگ بھی ہوتے تھے. مگر آج دشواری یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شعبہ اردو کا ڈومیننس ہے. اب اگر 100 رائٹرز کی آپ فہرست بنائیں گے تو 100 میں 80 آدمی شعبہ اردو سے متعلق ہوگا, اور خاص طور سے اگر تنقید اور تحقیق کی بات ہوگی تو شعبہ اردو کے اساتذہ اور ان کے طلبہ ہی اس کا سب سے بڑا حصہ ہوں. تو ایک تو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں نے اپنے کو اپنے اندر رائٹر بننے کی صلاحیت پیدا کی, مگر جب اسی کے ساتھ اس کے معیار پر بحث کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں نے اپنے معیار کو قائم رکھنے کے لیے کبھی کوشش نہیں کی. پرانی اگر تاریخ دیکھیں, آزادی سے ٹھیک پہلے اور آزادی کے بعد کے دیکھیں تو ہمارے نقاد, ہمارے ادیب, شاعر اور ہمارے شعبہ اردو سے ان کا بڑا ایکٹیو ریلیشن تھا. لیکن آج کی تاریخ میں کیا ہے کہ ہمارے شعبہ اردو جو ہیں ایک ایسے جزیرے کی طرح سے ہیں جہاں باہر کا افسانہ نگار نہیں جا سکتا ہے, جہاں باہر کا ناول نگار نہیں جا سکتا ہے, جہاں تخلیق کار کے لیے تقریباً انٹری نہیں ہے. ہمیشہ اب اپنے طلبہ کو بھی ہم زیادہ سے زیادہ ریسرچ, چونکہ ان کے جاب کا وہ حصہ ہے تو وہ ریسرچ میں ڈالتے ہیں, اور ریسرچ میں بھی ڈالتے ہیں تو ہم عصر ادب پر توجہ نہیں دیتے ہیں, نہ کلاسیکی ادب ٹھیک سے پڑھاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری یونیورسٹیاں جو ہیں دھیرے دھیرے علمی اعتبار سے اب بے فیض ہوتی جا رہی ہیں, یا ان میں گہرائی نہیں ہے جو ہمارے اسلاف میں ہوتی تھی. اس لیے شعبہ اردو کو جو اردو ادب کی ترقی کے لیے کیٹر کرنا تھا, وہ شعبہ اردو تقریباً ہر جگہ ناکام. اور آج صرف آپ 4-5 یونیورسٹیوں میں, جو بڑی یونیورسٹیاں, جو بہت مشہور یونیورسٹیاں ہیں, ان کے صدور اور ان کے جو آس پاس 2-4 لوگ ہیں ان کے ناموں کو رکھیے سامنے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ انہی یونیورسٹیوں میں کیسے کیسے نامور اساتذہ ہوتے تھے, اور جن کی کتابیں یا جن کے نام لیتے ہوئے ہم بہت ہی اکرام کے ساتھ سامنے آتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں ان کا, لیکن ان کی جگہ پہ
जो लोग होते हैं वह कैसे हैं, और क्या उनके सहारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी चल पाएगी, कितने दिन चलेगी। तो ये हमारे शोबे उर्दू कमजोर हुए, और शोबे उर्दू के कमजोर होने से हमारा पूरा जो अदबी माहौल है उसकी एनर्जी खत्म हो गई है। शोरा अलग काम कर रहे हैं, अफसाना निगार अलग काम कर रहे हैं, नॉवल निगार अलग काम कर रहे हैं, लेकिन इन सब से को मिलकर जो शोबे उर्दू को कोऑर्डिनेट करना था वो फेल हो गया है। तो सबसे पहले हमको शोबे उर्दू को ठीक करना होगा, उनके असातिज़ा को एहसास दिलाना होगा कि आपकी बड़ी अपनी जबान की तरक्की के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। पढ़ने पढ़ाने का माहौल बढ़ाना होगा, वो कमतर हो गया है, हर जगह कमतर हो गया है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन बता दूं कि लिसानियात पढ़ाने वाला कोई उस्ताद नहीं है, अरूज बलागत पढ़ाने वाला उस्ताद नहीं है, तारीख़ अदब उर्दू पढ़ाने वाला ठीक से उस्ताद नहीं है, तज़किरा बता के बारे में, उनकी बारीकियों के बारे में बताने वाला कोई उस्ताद नहीं है। तो जब आधे मौज़ूआत जो हैं, पूरे शुमाली हिंदुस्तान में आप चले जाइए, दक्कनी पढ़ाने वाले असातिज़ा नहीं मिलेंगे। तो जब हम आधी अधूरी तालीम दे रहे हैं, हमने निसाब भी उसी तरह से बना लिया या बदल लिया कि जिसमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत कम हो, तो उसकी वजह से तालीम में जो गहराई आनी चाहिए, उर्दू में जो यूनिवर्सिटी पास करते हैं तो उनकी तालीम बहुत गहरी हो जानी चाहिए, मुकम्मल हो जानी चाहिए, तो वो मुकम्मल नहीं हो पा रही है, और वो आधे अधूरे लोग ही फिर यूनिवर्सिटियों में वो मुलाजमत पा रहे हैं, कॉलेजों में मुलाजमत पा रहे हैं। तो ले देकर पूरा जो हमारा तालीमी निज़ाम है और उर्दू के हवाले से वो कमतर होता जा रहा है, जिसकी वजह से हम जो ज़बान की खिदमत करनी थी या जो एक मेयार मुतय्यन करना था, हमने वो मेयार मुतय्यन नहीं किया। ये बड़ा अफसोसनाक है, और इसको दुरुस्त किए बगैर हम समझते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत सही फरमाया आपने सर। क्या ये बात मान लिया जाए कि आपकी तवज्जो उर्दू से हट करके जो हिंदी की तरफ में आप माइल हुए और अंग्रेजी में मकालात लिखने लगे, क्या इन बातों का कुछ असर उसमें है? आपने फिर वो हिंदी में लिखना शुरू किया, अंग्रेजियों में लिखना शुरू किया, तो इसके पीछे कुछ आपकी बेजारी, नापसंदीदगी, कुछ इस तरह क्या वाकयात हुए जो आप उधर भी गए? नहीं, देख, बेजारी तो आज भी नहीं है, चूंकि सारा माहौल अगर बिगड़ भी जाए तो आप खुद तो काम कर सकते हैं ना। हमने जब देखा कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का माहौल बिगड़ रहा है, कम हो रहा है, तो हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला। हमने कहा कि यहीं पढ़ाएंगे, कम से कम जो अपना पढ़ा है, ये हमारे असातिज़ा ने पढ़ाया है, वो तो नहीं भूलेंगे। हमने पढ़ाया तो IAS, IPS या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के सैकड़ों तलबा को हमने उनकी मुलाजमत तक पहुंचाया। नेट JRF के लिए पढ़ाना बच्चों को शुरू किया। हमने कहा कि जब यूनिवर्सिटी कमजोर होगी तो हमको पैरेलल इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे। जाती तौर पर हमने जाती कोशिशों से, और जो UGC लेक्चरशिप का इम्तहान लेती है, तो कुछ भी अगर उसकी गिनती करें जिनको हमने पढ़ाया है, तो ऐसे 300-400 लोग होंगे जो JRF और नेट पास कर गए, जिन्होंने हमसे क्लासरूम में पढ़ा। तो हमने तो जाती तौर पर ही अपना रास्ता एक पैदा किया कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बच्चों को पढ़ाएंगे। हमने जब देखा कि लिटरेरी काम से पूरा नहीं हो रहा, हम जो कहना चाहते हैं, तो हमने सहाफत की तरफ तवज्जो की, हमने कॉलम लिखना शुरू किया। उसी तरह से मुझे इत्तेफाक से इसी तरह से कुछ लिखने पढ़ने में जब एक मौका आया कि भाई आप हिंदी में, कि वो पैसे देते थे पहले से, तो हमने कहा कि ठीक है, हिंदी में हम कॉलम लिखेंगे। हिंदी अखबारों की तरफ चले गए। उसी बीच एक बार आज के जो बड़े मशहूर एंकर हैं आपकी अदालत के, रजत शर्मा, वो आए पटना, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर ने हमसे मुलाकात कराई। उन्होंने कहा कि भाई ऑनलुकर हमने एडिट कर रहे हैं, आप ऑनलुकर में लिखिए। तो हम ऑनलुकर में लिखने लगे। तो अल्लाह का फजल था कि उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी आती थी। तो इन सब शोबों में आजमाया, वो आज तक आजमाते हैं, आज तक जरूरत पड़ती है तो वो लिखते रहते हैं। मगर उर्दू से एस्केप करना, उर्दू से कोई हमने एक जो होता है कि एक छुट्टी ली हो, ऐसा हमने नहीं किया और न करेंगे। बहुत ही बिल्कुल, चाहे जितने मुश्किल हालात हों, हमने वो एक माहौल बना लिया कि कॉम्पिटिटिव बच्चे जो पढ़ते हैं, जिनको कहीं कोई दुश्वारी होती है, वो हमसे पूछ लेते हैं, चले आते हैं, हमारा घर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है,
اور जहां हो, अब जब जदीद वसाइल जब पैदा हुए तो फोन इतना बड़ा जरिया हो गया, ऑनलाइन सिस्टम इतना बड़ा जरिया हो गया कि उसको हम बिल्कुल खुशी से इंटरटेन करते हैं। और मुझे यकीन है इस बात का, मैंने अपनी एक किताब का जो मुशाहिदात मेरे मज़ामीन का मजमुआ है उसका जो इंतसाब किया, तो मैंने कहा कि अपने अजीज तलबा के नाम जिन्हें पढ़ाते पढ़ाते मैं भी कुछ सीख गया, मैंने भी कुछ पा लिया, तो उसी शौक से आज भी पढ़ाता हूँ। और उसी दिल जमई से कि जब मैं उम्रा करने गया तो खाने काबा के पास मैं खड़ा था और इत्तेफाक से वो वाईफाई लगा, तो फोन एक बच्चे ने फोन किया, और फोन किया तो उसने पूछा कि यगाना चंगेजी का असली नाम वो भूल रहा था, उसको कहीं नहीं मिला, तो हमको फोन कर दिया। तो हमने फोन पर जवाब बता दिया कि भाई यगाना का ये नाम है। लेकिन मैंने अगले लम्हे उस बच्चे से कहा कि तुम्हें ये मालूम नहीं है कि हम कहाँ आए हुए हैं? तो उसने कहा कि हाँ उम्रा करने आप गए थे। तो हमने कहा कि एक हफ्ता तो हमको छोड़ देते। तो कहा कि नहीं अभी भूल गए थे और नहीं मिल रही थी चीज, तो हमने पूछ दिया। तो हमने कहा कि चलो ये कम से कम अल्लाह के घर में ये तो दर्ज हो गया कि भाई किसी ने हमसे कोई पूछा और उस सवाल का जवाब हमने दिया। तो ये उर्दू से इसके पॉइंट हमने अभी तक नहीं ढूंढा है और ना ढूंढेंगे। दुआ कीजिए कि ये आखिरी दम तक है। इसका सबूत इस बात से भी मिलता है कि आपके नाम से एक इदारा जुड़ा हुआ है जिसे हम बज़्म सदफ के नाम से जानते हैं, और जिसमें आपकी सरगर्मियां जो है नुमाया है। तो आप इस बज़्म सदफ के बारे में हमारे सामीन को कुछ जरा बताएं तफसीली तौर पर कि इस इदारे से आप क्या कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो है इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज आप इसके बारे में तफसील से बताएं। असल में मेरे भांजे थे ज़ियाउद्दीन अहमद, शाहिद जमाल, उन्होंने उर्दू में एमए भी किया था, पीएचडी भी की थी, और उन्होंने एक रिसाला निकाला सदफ नाम से। उसके 2 शुमारे आए। कुछ ऐसा हादसा हुआ कि वो इस दुनिया में नहीं रह सके, लेकिन वो 2 शुमारे आए और बड़े सलीके से उन्होंने निकाले मुल्क भर के लोगों को। तो हमारे जहन में ये बात थी कि कहीं भी इसे रिवाइव किया जाए। फिर उनसे ठीक छोटे भाई हैं शहाबुद्दीन अहमद, तो शहाबुद्दीन अहमद मेरे भांजे हैं। तो मैंने और शहाबुद्दीन अहमद मिल के बैठकर हम लोगों ने कहा कि कम से कम शाहिद के एक यादगार भी हो जाए। उसने एक रसाला निकाला था, तो हम लोगों ने फिर सदफ नाम से फिर से रसाला एक शुरू किया और बज़्म सदफ बनाई, एक तंजीम। फिर मकतबे सदफ बनाया, किताबें छापने के लिए इदारा। और ये तीनों चीजें मिलकर अल्लाह का फजल है कि पिछले मुश्किल से 7 बरस हुए। 7 बरस में हमने 100 से ज्यादा प्रोग्राम किए, 100 से ज्यादा किताबें छापी हैं, और हम न जाने किस किस शहर में हमारी शाखें कायम हो गई और वहाँ प्रोग्राम होते रहते हैं। कोशिश की कि सारे प्रोग्राम हमारे ऐसे हों जिसमें हिंदुस्तान से बाहर के कुछ लोग जरूर हों। मतलब बैनुल अक़वामी सतह से, जब हमारी ज़बान बैनुल अक़वामी है तो हमने कोशिश की है कि उसी मेयार के प्रोग्राम भी हों, उसी तरह की किताबें भी हों। अभी ही जैसे अभी फौरन जो हमारी जो उर्दू सहाफ़त है उसकी 2 सदी थी, तो 1822 से जब उर्दू सहाफ़त शुरू हुई तो हमने कोशिश की कि अब ये 3 प्रोग्राम हमने पटना में, कलकत्ता में और फिर हैदराबाद में 3 सेमिनार बड़े किए और 2 ज़ख़ीम किताबें इस मौजू से शाये की कि सहाफ़त की तारीख़ भी सामने आ जाए और पूरा एक इशारिया, उसका मुकम्मल इशारिया भरपूर तौर पर हमने शाये किया। तो ये बज़्म सदफ पटना और कतर में 2 जगह इसकी बुनियादी तंजीम है। वहाँ शहाबुद्दीन अहमद रहते हैं और यहाँ मैं रहता हूँ, और हम लोग मिलजुल कर कोशिश हम लोगों ने की है कि दुनिया भर के अदीब शायर जुड़े, अवार्ड भी देते हैं, बैन अक़वामी अवार्ड भी देते हैं और नई नस्ल अवार्ड भी देते हैं। और हमने बहुत ही नुमाया लोगों को इनामात दिए हैं, उनको पहचान, उनकी जो पहचान थी उसको इस्तेहकाम बख्शने की कोशिश की। तो ये एक इदारा है जो हम समझते हैं कि ग्रोइंग इदारा माना जाएगा, और किसी भी अदबी कोई हल्का ऐसा नहीं है जिससे हमने खुद को जोड़ा नहीं हो। कभी कोई किसी इदारे के हल्के में नहीं गए। हमने कोशिश की कि नहीं, इम्पार्शियल रहें और एक न्यूट्रल स्टैंड रखकर
हम इस इदारे को चलाएं। ये इदारा अच्छा खासा अल्लाह का फजल है, जितने कम मुद्दत है उसके हिसाब से बहुत फल फूल रहा है, और दुनिया भर के गोशे गोशे में जाकर हम लोगों ने प्रोग्राम किए और लोगों को भी बुलाया और लोग आते जाते रहते हैं। जी, बहुत 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 शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी बातें तफसील से बताई और सामीन को तकरीबन महसूस कराया। अब हमारा जो वक्त हुआ चाहता है कि सामीन से कुछ सवाल आपके लिए, लेकिन मेरा आखिरी में 1 सेकंड का एक सवाल है। आप उर्दू के हवाले से किस कदर मुतमईन है, इसका एक जो है आप थोड़ा मुख्तसर इसका जवाब दीजिए, उसके बाद फिर सवाल लेते हैं सामीन से। देखिए, आपने शुरू में दरमियान में एक बात कही थी, वो उसी में वो जवाब शामिल है, और हम सबकी फिक्रमंदी वही है कि उर्दू बड़ी जबान है बेशक, और दुनिया भर में बोली जाती है, इसमें कोई कंफ्यूजन हमको नहीं है। और हमने दुनिया के थोड़े से हिस्से को देखा है, तो देखा है कि हम उर्दू बोलते हुए हम दुनिया भर में जी सकते हैं। तो ये किसी भी लैंग्वा फ्रैंका की एक खूबी होती है कि आप उसके सहारे आगे बढ़ सकते हैं। तो उर्दू तो ये जिंदा रहने वाली जबान है, इसमें कोई दुश्वारी नहीं है। मगर हिंदुस्तान में खास तौर से उर्दू के सिलसिले से तरह तरह की, अगर 200-250 साल की तारीख देखें तो तरह तरह की सियासत रही है, और उस सियासत में उर्दू मुख्तलिफ अंदाज के शिकार भी हुई है। आज की जो जरूरत है उसमें आपने इख्तिसार से कहा तो मैं बता दूं कि आज की जो सबसे बड़ी जरूरत है कि उर्दू रीडरशिप कैसे बढ़े, उर्दू पढ़ने वाले कैसे बढ़ें, क्योंकि हुकूमतें जो आपके ख्यालात पसंद नहीं करती हैं वह आपकी रीडरशिप पर हमला करेंगी और उसे रोकेंगी। तो उसके पैरेलल ये उर्दू अवाम का फर्ज है कि वो किस तरह से रीडरशिप क्रिएट करें। आप छोटे मकतब बनाएं। हम जानते हैं कि उर्दू बोलने वाले भी जब अपने इदारे बनाते हैं तो उनको ये ध्यान नहीं रहता है कि इसमें उर्दू के लिए एक स्पेस रखें। आप जो खास तौर से आज मुसलमानों की जबान ये बन गई है, हालांकि थोड़े से लोग ऐसे हैं जो मुसलमान नहीं है लेकिन उर्दू में बड़े दिल लगाकर काम कर रहे हैं और जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उसको हासिल भी कर रहे हैं। वैसे लोग भी हैं, लेकिन बड़ी तादाद तो मुसलमानों की है। तो मुसलमानों को अगर अरबी पढ़ाने के लिए उन्हें ट्यूटर रखना पड़ता है, वो उनके पास ऐसे स्कूल नहीं है जो अरबी भी पढ़ा दें, तो बच्चों को जब अरबी पढ़ाते हैं तो उसी वक्त अगर अरबी और उर्दू एक साथ पढ़ा दें तो आगे उनको दुश्वारी नहीं होगी। तो उर्दू रीडरशिप क्रिएट करना और उसमें जो रुकावटें आती हैं सरकार की तरफ से, उसके मद्दे मुकाबिल अब जाती कोशिशों को शामिल करना, ये बहुत आसान है कि उर्दू रीडरशिप क्रिएट हो सकती है। प्राइमरी से लेकर अगर यूनिवर्सिटी के लेवल तक जाइएगा तो हर जगह जरा सी मुदाखलत आप कर देते हैं तो उर्दू का शोबा खुल जाता है। उर्दू का जहां उस्ताद नहीं है वहां उर्दू का उस्ताद हो जाता है। ये जो उर्दू एकेडमीज हैं, अंजुमन तरक्की उर्दू है, का इस तरह के जितने जो छोटे छोटे इदारे हैं, क्या वो एक टीचर को मुफ्त में नहीं दे सकते हैं? हमारा घर है, एक कमरा 1 घंटे के लिए आप दे दें, आसपास के 10 लोगों को कहें कि हम उर्दू सिखा देंगे। तो इस तरह से उर्दू लर्निंग के प्रोग्राम को बढ़ा के, उर्दू की रीडरशिप को बढ़ा के हम कोशिश कर सकते हैं कि जो एक तरफ से उधर से तहदीद हो रही है, रुकावटें पैदा हो रही हैं, उसका हम मुकाबला कर सकते हैं और उर्दू के पढ़ने वालों की तादाद बढ़ा सकते हैं। सर, आपने बहुत अच्छे ढंग से उर्दू के सारे मसाइल के न सिर्फ जवाब दिए बल्कि मसाइल के हल भी बताए। बस इससे तो यही पता चलता है कि भाई अपना अपना तो काम है कि जलाए चलो चिराग, रस्ते में खास दोस्त के दुश्मन का घर मिले। अगर इस तरह से हम अपना काम करते रहें तो इंशाअल्लाह ज़रूर हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अब हमारा जो है फॉर्मेट के हिसाब से अब वक्त हुआ जाता है कि मैं अपने सामीन से कुछ सवाल आपके लिए लूँ। तो कोई सवाल, किसी को कोई सवाल पूछना है तो अपना हाथ रेज करें या अपने सामने आ जाएं डायरेक्ट। डॉक्टर वसीम साहब, आप यहाँ मौजूद हैं? डॉक्टर वसीम साहब जी हाँ, कुछ जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल लगा जी जी इस पूरे गुफ्तगू को सुन के बहुत कुछ मालूम हुआ। जी और मेरा मैदान बिल्कुल अलग है।
لیکن ایک چیز جو ذہن میں آ رہی تھی کہ دریافت کروں کہ اردو تنقید پہ بات کر رہے تھے ہمارے مہمان صفدر امام صاحب، تو میں جاننا چاہتا تھا کہ ویسٹ میں جو لٹریری کرٹیسزم کی ٹریڈیشن ہے تو وہ کتنی ہیلدی ہے، یا کیا وہاں سے کچھ یعنی سیکھا جا سکتا ہے؟ یہ سوال میں نے یہاں ڈالا ہوا ہے، اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو sorry, I'm interrupting you, Dr. Saab, but I think it's better for us, please open your videos, sir. تو سوال زیادہ واضح ہو جائے گا؟ ہاں شکل زیادہ واضح ہو جائے گا. جی ہاں، سوال بہت واضح ہے، بے شک بہت اور اچھا سوال ہے. اردو تنقید کو یہ ہمیشہ فائدہ رہا ہے کہ اس کا رشتہ ایک ویسٹرن کرٹیسزم سے ہمیشہ رہا ہے. اردو کے ہم جو سب سے بڑے نقادوں کا نام لیتے ہیں تو جیسے ہی حالی اور شبلی کے بعد کے دور کے جو 3-4 نقاد سامنے آتے ہیں تو کلیم الدین احمد تو باضابطہ ایف.آر. لیوس کے کلاس روم کے شاگرد تھے. بھائی جو انگریزی پڑھتے ہیں، انگریزی تنقید کے معماروں میں ایف.آر. لیوس کا نام لیتے ہیں، تو کلیم الدین احمد تو ایف.آر. لیوس سے کہا ہی جاتا ہے کہ ایف.آر. لیوس سے جو پڑھ کر آیا کلیم الدین احمد آئے اور اس کا انطباق انہوں نے اردو تنقید پر کیا. انگلینڈ میں رہنے کے دوران انہوں نے آئی ریچرڈس کے لیکچرز میں شامل ہونے کا انہیں موقع ملا، اور بھی انگریزی کے جو اس زمانے کے بڑے نقاد تھے ان کے پاس رہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ آل احمد سرور اس زمانے کے نقاد ہوئے. آل احمد سرور نے تو پہلے انگریزی میں ایم اے کیا، پھر انگریزی میں لیکچرر ہوئے، پھر ذاکر حسین صاحب کے مشورے کے بعد وہ پھر اردو میں آئے. تو باضابطہ انہوں نے وہ انگریزی زبان پڑھ رکھی تھی اور اس کی تنقید اور اس کی تاریخ سے واقف تھے. اس کے بعد کے نقادوں میں ابھی پچھلے برس شمس الرحمان فاروقی صاحب کا انتقال ہوا، تو شمس الرحمان فاروقی صاحب بھی باضابطہ انگریزی کے طالب علم تھے، پھر انگریزی کے لیکچرر ہوئے اور اس کے بعد پھر سول سروس میں آئے. تو ہمارے پاس تو ایک بڑی فہرست ہے جو سب کے سب انہوں نے باضابطہ طور پر انگریزی تنقید اور انگریزی ادب کی تعلیم کو دیکھا تھا اور عالمی معیار سے باخبر تھے. عزیز احمد، جمیل جالبی اور خود شمس الرحمان فاروقی نے پوئٹکس کا ترجمہ کیا، اور کئی لوگ ہمارے پاس ہیں جو جرمن ادب کا، فرینچ لٹریچر کا ترجمہ کیا. ہمارے پاس زو انصاری جیسے آدمی تھے، محمد مجیب جیسے آدمی تھے، ذاکر حسین جن کو ہم صدر جمہوریہ کے طور پر جانتے ہیں، مگر انہوں نے لبرٹی کا ترجمہ کیا. تو یہ جرمن اور فرینچ جاننے والے لوگ تھے. تو اردو تو ملٹی لنگول سوسائٹی کا حصہ ہے. ہمارے پرانے لوگ عربی، فارسی اور اردو جانتے تھے، لیکن جدید عہد میں جیسے آتے ہیں تو اردو کا جو استاد ہوتا ہے، اردو کا جو طالب علم ہوتا ہے، اس میں اچھے خاصے لوگ ہیں جو دوسری زبانوں میں بھی کام کرتے رہتے ہیں اور ان کی کتابیں بھی آتی رہتی ہیں. ابھی ہمارے نوجوانوں میں کئی ایسے لوگ ہیں جو جرمن زبان میں کام کر رہے ہیں، عربی سے ترجمہ کر رہے ہیں. وہ انوار الحق صاحب اردو کے پی ایچ ڈی ہیں، مگر ان کا ناول تو انگریزی میں شائع ہوا اور انگریزی میں 2 ناول شائع ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں ملٹی لنگول لوگ ہیں، اور اس سے ہمیشہ جو ملٹی لنگول ہوگا وہ تنقید کے مرحلے میں، تخلیق کے مرحلے میں، دونوں میں وہ جو دوسری زبانوں کی تاریخ اور اس کے سرمایہ سے فائدہ اٹھائے گا. اور یہ خوشگوار ماحول ہے اردو میں. کبھی آپ کو کوئی یہ نہ بولے گا کہ آپ نے بھئی انگریزی تنقید کا کیوں حوالہ دے دیا. یہ اردو میں نہیں بولا جاتا ہے، یہ مانا جاتا ہے کہ نہیں، ہم مختلف زبانوں کے علم سے فائدہ اٹھائیں گے. میرا مطلب یہ تھا کہ جی آپ فرما رہے تھے کہ جیسے یہاں کیمپ بنے ہوئے ہیں اور یہاں شخصیات کے گرد اور اس طرح کی جو باتیں آپ بتا رہے تھے، تو ہیلدی ٹریڈیشنز، اس سے شاید آپ کا کہنا تھا کہ کچھ اور ہیلدی ٹریڈیشنز ہونی چاہیے کریٹیسزم کی، تو ایسی کچھ اور ٹریڈیشن سیکھی جا سکتی ہیں کیا؟ میرا یہ کہنا تھا. جی ابھی دیکھیں، تنقید یا لٹریچر کوئی الگ تھلگ چیز تو ہوتی نہیں ہے. یہ ہماری جو دنیا جیسے ہے، دنیا جیسے بدل رہی ہے،
दुनिया आज की अंग्रेजी तनकीद में भी टी.एस. एलियट तो नजर नहीं आएंगे। तो दुनिया भी अब शख्सियात का तिलिस्म घट रहा है और वो मेयार भी, चूंकि हम जो एक होता है कि हम हॉरिजॉन्टल बढ़ रहे हैं, हमारे पास कल 4 नक्काद होते थे, हमारे पास 100 नक्काद हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि 100 नक्काद में हम हमेशा टॉवरिंग फिगर्स देखें। हमारे जमाने में ये बड़ा मसला है कि हमारे जमाने में चंद तो टॉवरिंग फिगर हैं लेकिन बाकी नहीं। तो शख्सियात, ये पूरा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो सोसाइटी है, इनकी सियासत, इनकी तारीख, सब शख्सियात के दायरे में घिरी हुई है। तो शख्सियात के दायरे में जो सोसाइटी घिरेगी तो उसकी सियासत भी उससे मुतासिर होगी और अदब भी मुतासिर होगा। तो काश हम रवैयों पर, हमारे ट्रेंड, जो लिटरेरी ट्रेंड और सोशल ट्रेंड और जो उस पर हम फिर से लौट आए। अगर वो दौर आएगा तो हम समझते हैं कि ये जो ईगो क्लैशेस हैं या उसके शख्सियात के हिसार में जो हमारा अदब चल रहा है वो शायद घटे। जी सर, बहुत अच्छे ढंग से आपने सवाल का जवाब दिया। यहाँ से एक बात, थोड़ी सी बात यह है, जैसा आपने बताया कि बहुत सारे उर्दू जुबान के लोग जर्मनी जुबान में, अंग्रेजी जुबान में किताबें लिख रहे हैं। शायद आपके इल्म में बात यह होगी कि रविंद्रनाथ टैगोर को भी जो नोबेल प्राइज मिला तो वो उनकी बंगाली में लिखी हुई किताब की वजह से नहीं मिला, बल्कि उनको जो है उन्होंने ट्रांसलेट करके उनको अंग्रेजी जुबान में दिया और नोबेल प्राइज देने वाले जो जूरी थे उन्होंने उनकी यही अंग्रेजी वाली किताब देखी और लेकिन जो है उनको नोबेल प्राइज मिला। तो यहाँ से 2 बात है। तो क्या इससे यहाँ से भी एक रास्ता उम्मीद कर सकते हैं हम कि आने वाले दिनों में उर्दू जुबान को भी कभी कोई नोबेल प्राइज मिल सकता है? ऐसी कुछ आप इसके बारे में कुछ थोड़ी सी वजाहत करें। देखिए, पिछले दौर में हम देखते हैं कि इंतजार हुसैन को पुलित्जर प्राइज के लिए आखिरी फेरिस्त में शामिल हुए थे, वो भी अंग्रेजी तर्जुमा था। शम्सुर रहमान फारूकी ने अपने नॉवेल कई चांद थे सरे आसमां का खुद तर्जुमा किया था, वह भी यूरोप के बड़े अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई, मिली नहीं। अभी हिंदी की बड़ी मशहूर नॉवेल निगार हैं गीतांजलि श्री, उनका भी तर्जुमा वेस्ट में हुआ और वह बुकर प्राइज के लिए लास्ट जो 6 किताबों में वो शॉर्ट लिस्ट हुई है। तो यह तो दुनिया में तर्जुमे के सहारे बड़े दायरे में पहुंचने का एक जरिया है और हर आदमी को, हर जबान के लिखने वाले को ये काम करना पड़ता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने ये काम किया, हालांकि वो बाइलिंगुअल थे और उन्होंने अंग्रेजी में भी खूब लिखा है। कोई ये नहीं कि वो उन नज़मों का तर्जुमा भले दूसरे ने किया और उसको रिकमेंड किया गया, मगर वो खुद भी लिखते थे, उस जबान में लिखते थे। और वो याद रखना चाहिए कि वो 1913 की बात है, उस वक्त कॉलोनियल वर्ल्ड था, कोई हिंदुस्तान ही नहीं, वो पूरी कॉलोनी थी। तो कॉलोनी का टेम्परामेंट और कॉलोनी के अहवाल दूसरे थे। अब देखिएगा कि मुख्तलिफ जबानों के लोग, लेकिन अंग्रेजी अभी भी कमोबेश दुनिया के इतने बड़े हिस्से में फैली हुई है कि उसमें तर्जुमा किए बगैर आपकी चीज बड़ी सर्किल में नहीं जाती है। तो ये इस तर्जुमे की रिवायत को, हमारे नॉवेल को, हमारे अफसाने को दूर दूर तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए मुसन्निफीन को भी कोशिश करनी चाहिए। खुद तर्जुमा कर सकते हैं तो खुद करें, या नहीं तो अभी रहमान अब्बास का जो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था रोजिन, उसका पेंगुइन ने तर्जुमा किया है और अभी रिलीज होने वाली है। तो उर्दू के अदीबों शायरों की किताबें दूसरी जबानों में आ रही हैं और उससे शायद ये माहौल भी बनेगा कि उनको कुछ बड़े बड़े अवार्ड से मिल सके। वरना हमारे भाई इकबाल से लेकर फैज तक और फैज से लेकर हमारे जमाने के शहरयार तक उस तरह के आलमी अवार्ड से महरूम रहे। तो हर कोई सामीन में से कोई है अपना सवाल अगर पूछ सकते हैं, अब पूछना चाहते हैं तो पूछिए। सामीन में आप कोई अफशा हैं यहाँ पर और भी हैं, तैयब है, नीलोफर, तैयब तुम पूछना चाहते हो? चलो जी सर, सवाल करो अपना सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम। शागिर्द का उस्ताद से सवाल। जी, मैं यहाँ तो मेरे सदर सर भी मेरे उस्ताद की तरह है और रियाज सर तो मैं बाकायदा उनका शागिर्द हूँ, यकीनी तौर। और मेरा सर सवाल ये है कि
बज़्म सदफ के हवाले से जो आपने बात की, एक सवाल वहाँ से, महज 7 सालों में 100 किताबों की अशात और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों और मुख्तलिफ मुल्कों में तकरीबात और हिंदुस्तान के शहरों में, तो आपका पैगाम और दिगर तंजीमों के लिए क्या है कि वो इसी तरह से काम करें? एक सवाल सर ये, और दूसरा सवाल ये है सर कि पता नहीं मैं अभी कर लूँ कि शायद मौका मिले ना मिले, कि फी ज़माना सर आप उर्दू तनकीद या फिर जिस तरह के अदब की तख्लीक है उससे किस हद तक आप समझते हैं? मेरे दोस्त। अच्छे, तो उर्दू की दीगर तंजीमों के साथ तो देखिए हर तंजीम का अपना दायरे कार होता है। कोई तंजीम मुशायरा कराती है, कोई सेमिनार कराती है, कोई छोटी तकरीब कराती है, कोई बड़े मुशायरे कराते हैं, कोई मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं। बहुत सब तमाम तंजीमों का दायरे कार मखसूस है। तो उसमें जो तंजीम एक काम अपना ले, पहला काम ये उसको करना चाहिए कि मेयार का ख्याल रखे। बट हमने मेयार का ख्याल नहीं रखा, जिसका नतीजा एक सामने आया कि आज हमारे जो मुशायरे होते हैं, आज मुशायरे इस मेयार के हो गए कि आपको उसमें शामिल होते हुए दुखी होना पड़ता है। आपके साथीज़ा में शामिल थे, मुझे याद है कि कैसर शमीम साहब, एक रोज कलकत्ते में मेरी मुलाकात हुई, तो 2 दिन पहले पटना शहर में एक मुशायरा हुआ था और एक कारोबारी तंजीम ने वो मुशायरा किया था। तो उसका बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई थी, उसमें एक शायरा का नाम था जो कलकत्ता से थी। मैं उस मुशायरे में गया नहीं था। जब कलकत्ते में मैंने पूछा कैसर शमीम से कि भाई इस नाम के ये शायरा, तो उन्होंने कहा कि मुझे यकसर वाकफियत नहीं है कि इस नाम की शायरा है। तो जब मुशायरों में हमने देखा कि गैर शायर, मुतशायर, दूसरों से कलाम लेकर पढ़ने वाले, गवैये में भी खुद अपना शेर पढ़ने वाले नहीं, दूसरों का कलाम पढ़ने वाले लोग दाखिल धीरे धीरे होते गए। और अब नतीजा ये है कि जो हकीकी शायर है वो मुशायरों से दूर हो गया, वो बाहर हो गया। मुशायरों से बाहर हो गया तो मुशायरे का मेयार उससे मुतासिर हुआ। और हालत ये है कि सिर्फ ये हिंदुस्तान में नहीं, रियाज साहब जहाँ रहते हैं, दुबई के भी मुशायरे जो होते हैं उसमें भी 4 मुतशायर चले जाते हैं, ऐसे शोरा चले जाते हैं, ऐसी खवातीन चली जाती हैं, ऐसे नाम नहाद शोरा चले जाते हैं जो खुद से शेर नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरा एक और बड़ा मसला है कि उर्दू, ये मुशायरा जो है उर्दू तहजीब का एक हिस्सा है, उर्दू शायरी और उर्दू शायरी की तारीख का एक हिस्सा है। आज मुशायरों में 50% ऐसे शोरा जाते हैं जो उर्दू नहीं जानते हैं। अगर उनके पास पर्ची है, आप जरा सा झांक के देख लीजिए, वो पर्ची उर्दू की नहीं होगी, किसी के पास हिंदी की होगी, किसी के पास रोमन की होगी। तो हर चंद के दुनिया बदल रही है, मगर भाई कम से कम ये तो हो कि वो उर्दू तो पढ़ा हुआ हो, उर्दू में शेर कहना तो जानता हो, शायर तो हो। तो मुशायरे हमारे बिगड़ गए। अब ये सेमिनारों में भी ये बिदत आम होने लगी है कि किसी दूसरे से पर्चा लिखा लिया, पढ़ दिया, किसी को पैसे देकर कुछ कर लिया। हमने ऐसे कलीदी खुतबा देने वाले लोगों को भी देखा है जिन्होंने दूसरे से लिखवाकर और वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं स्टेज पर। तो पीआरशिप ने इसको बिगाड़ दिया है। तो मुशायरों को या अपने तकरीबात को बचाने के लिए एक प्योरिटन माहौल बनाने की जरूरत है कि भाई ये शर्त हो कि उर्दू तुम जानते हो कि नहीं, उर्दू में तुम कलाम लिखते हो कि नहीं, और कलाम मौजू कर सकते हो कि नहीं। मुझे याद आ रहा है कि आज से तकरीबन 40 बरस हो गए, 40-42 बरस, एक मुशायरे में एक उर्दू के बड़े मशहूर शायर हैं, उनके खत लिखा मुशायरा कराने वालों ने कि भाई आप आइए। तो उनके बेटे ने जवाब दिया जो शायर होने का क्लेम कर रहे थे, और बेटे ने जवाब दिया कि एक अरसे से वालिद मोहतरम अलील हैं, तो उन्होंने कहा है कि मुझे कहा है कि मैं मुशायरे में चला जाऊं। तो वो जो अलील उन्होंने लिखा था वो अलिफ से लिखा था। बड़े शायर की औलाद है, ये एक काम है। मगर आप ये बताइए कि जो शख्स अलील अलिफ से लिखता हो वो किस हिम्मत से आ रहा है मुशायरे में पढ़ने के लिए,
اور ہم نے دیکھا کہ اس 40 برس میں خیر وہ اب ضائع ہو گئے, اب وہ مشاعرے میں نہیں نظر آتے ہیں, لیکن 10 برس تو مشاعرے میں اپنے باپ کے بل پہ چلے گئے. تو اسی طرح سے سب نے اپنا گاڈ فادر بنا لیا ہے, کیمپ فالوورز کریٹ کر دیے ہیں, اور اس سے مشاعرے, سیمینار سب متاثر ہو رہے ہیں. تو ہمارے آرگنائزرز کا فرض ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو باہر کریں, میدان سے ہٹائیں اور ضد کریں کہ نہیں بھائی مشاعرہ ہے تو شاعر تو ہو. یہ بازار سے ہم اٹھا کر لے کر آئیں گے, قوال کو لے کر آئیں گے, وہ شاعر نہیں ہے. تو نوٹنکی کرنے والے کو ہم مشاعرے میں بیٹھا دیں, وہ شاعر نہیں ہے. تو یہ کوشش ہونی چاہیے. ہماری تنظیموں کا ایک بہت بنیادی کام ہے جو اس طور پر کہ ذرا پیوریٹن ماحول بنائیں اور سختی سے انٹری روکیں. نہیں روکیں گے تو دھیرے دھیرے تو یہ ہو ہی چکا ہے کہ آدھے اچھے شعراء مشاعروں سے بیزار ہو گئے, چلے گئے, باہر ہو گئے, اور کل ہوگا کہ سارے متشاعر ہی مشاعرے میں رہیں گے اور ایک دوسرے کو بلائیں گے اور ایک دوسرے پر گائیں گے, بجائیں گے, اور ذلیل اردو والے ہوں گے. سر ایک کوئی شہاب الدین احمد صاحب ہیں, انہوں نے ایک سوال بھیجا آپ کے لیے. شہاب الدین احمد صاحب, آپ بزم صدف کے ڈائریکٹر ہیں, آپ بتا سکتے ہیں کہ بزم صدف انٹرنیشنل اردو تحریک کے حوالے سے کیا کام کر رہی ہے؟ کوئی شہاب الدین احمد صاحب, ان کا یہ سوال ہے. تو اس سلسلے سے تو ہم لوگوں کی گفتگو تو اچھی خاصی ہو چکی ہے, لیکن کچھ باتیں رہ گئی ہیں, وہ بتانا چاہوں گا کہ ہاں بالکل, کہ بزم صدف نے ایک جو انٹرنیشنل اردو کا ایک جو بین الاقوامی مزاج ہے اس کی بنیاد پر اپنے کام کاج کو آگے بڑھایا ہے. وہ جن کو انعام بھی دیا, تو ہم آج کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اگر ہم پر یہ چیلنج کر سکے کہ آپ نے جن کو انعام دیا وہ کمزور لکھنے والے تھے. ہم نے بھائی جاوید دانش کو انعام دیا, ہم نے باسط سلطان کاظمی کو انعام دیا, مجتبیٰ حسین کو انعام دیا, مظفر حنفی کو انعام دیا, غضنفر کو انعام دیا. یہ ایسے لوگ ہیں جو ادب کے سکے رائج الوقت ہیں. کیا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے ساہتیہ اکیڈمی کہہ سکتی ہے کہ انہوں نے 5 سال لگاتار اس معیار کے لوگوں کو انعام دیا؟ نہیں کہہ سکتی ہے. تو ہم نے ایک معیار قائم کرنے کی کوشش کی, اور یہ چونکہ پبلک ڈومین میں انعام جاتا ہے تو جواب دہی ہماری ہوتی ہے کہ ہم اس معیار کو قائم رکھیں. بزم صدف اس معاملے میں خوش نصیب ہے کہ اس نے چن کر ان چہروں کو ابھارا ہے جو قیمتی تھے اور جن پر کبھی وقت کی گرد نہیں جمے گی. انشاءاللہ وہ آگے بھی ہمارے عظیم لکھنے والوں کی فہرست میں رہیں گے. تو انعام کے سلسلے سے بزم صدف نے یہ کیا. بزم صدف کے جو مشاعرے ہوئے اس میں بالکل میں کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ ایک بھی متشاعر کو ہم نے انٹری نہیں دی. ہم نے گانے بجانے والے کو ڈسکریج کیا. ہم نے کہا کہ نہیں, معیار خیال رکھو. جو سیمینار کیے اس میں ایک بھی نقلی پیپر پڑھنے والے کو جگہ نہیں دی. جو دوسروں سے لکھا کے اگر جو اساتذہ یا جو بڑے مشہور لوگ ہیں وہ آتے ہیں, ان کی جگہ پہ اچھا ہے کہ نئے نئے ریسرچ اسکالرز کو موقع دیا جائے, اور وہ محنت کرتے ہیں, وہ اپنا وقت لگاتے ہیں اور قیمتی چیز پیش کرتے ہیں. تو ہم نے اس کو ترجیح دی. تو یہ ایک نیا اکیڈمک کلچر ہے, نیا ایک ماحول بنانے کی کوشش ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ تاریخی کام مانا جائے گا اور لوگ پسند کریں گے کہ بزم صدف جو کام کر رہی ہے اس کو بڑے بڑے اداروں کو بھی اس کو فالو کرنا چاہیے. اب ورنہ خراب پروگرام, خراب مشاعرے اور نقلی ادیبوں, شاعروں کو, افسانہ نگاروں کو ترجیح لوگ دینے کا جب تک عمل رکھیں گے تب تک ہمارا معیار ایٹ اسٹیک رہے گا. سر وہ ٹائم کا خیال کرتے ہوئے میں تمام حضرات سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں. میں نام پکارتا ہوں, جیسے ہیں افشاں صاحبہ, اگر آپ سوال کرنا چاہتی ہیں تو سوال کریں اپنا. اس کے علاوہ جو ہے مرزا محمد حسین صاحب, آپ کا اگر کوئی سوال ہو تو پوچھیں. اسی طرح سے نیلوفر یاسمین, اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو موقع ہے آپ کو, آپ بھی سوال کریں. شہاب الدین صاحب نے آلریڈی سوال کیا, وسیم صاحب نے آلریڈی کیا. ایک اور ہے جو ریڈمی میں شامل ہیں, آپ نے السلام علیکم کہا ہے. آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو پھر آپ جو سوال کر سکتے ہیں, اور نہیں تو پھر میں اس پروگرام کو
यहीं पर कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, वक्त हमारा हुआ चाहता है। और कोई है साहब बताइए। तो सर आपसे गुफ्तगू करके सामीन बहुत महसूस हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो है 2-3 बातें मैं लोगों को जो निकल करके आई वो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात जो आपके से गुफ्तगू के दौरान जो मुझे पता चला कि गो के उर्दू की तरक्की के हवाले से आप मुतफक्किर जरूर हैं, लेकिन आप मायूस नहीं हैं। आप अभी भी समझते हैं कि उर्दू जो है, उर्दू का अपना एक मकाम है और ये इंशाअल्लाह ये अपना मकाम बरकरार रखेगी। गो के बहुत सारे मुनाफिकीन जुड़ गए हैं और फिर जो है मुतशायर जुड़े हैं, बिठाए जाएंगे हर डब्बे में शायर, जहाँ पे गाड़ी रुकेगी मुशायरा होगा, इस तरह के हालात हैं। लेकिन फिर भी आप जो है इससे मायूस नहीं है कि उर्दू जो है अपना मकाम जो है एक न एक दिन हासिल करके रहेगी। इसके अलावा आपकी बातों से ये भी पता चला कि उर्दू के साथ साथ लोगों को अब दूसरी जबानों में भी मेहनत करनी चाहिए, ताकि आपको अब जब तक जो है आप अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपको पहचानेंगे लोग क्यों। आपकी जुबान कोई पढ़ता नहीं, आप दूसरे की अब पढ़ते नहीं, तो ऐसी सूरत में आप जो है बाहर कैसे निकलेंगे। कोई भी चीज की मकबूलियत जो है घर में नहीं होती है। घर में तो शौहर की कदर बीवी नहीं करती, तो फिर जो है बाहर में जब तक लोग आप बाहर में कोई अपना कार नुमाया अंजाम नहीं देंगे तो फिर आपकी कदर कहाँ होगी। तो इससे पता चलता है कि जो है उर्दू जानने वालों को अंग्रेजी में भी कुछ ना कुछ मेहनत करके अपनी जो तख्लीकात हैं उनको अंग्रेजी में तर्जुमा करके दूसरों तक पहुंचाएं। घर वाले अगर जो है आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में दूसरे जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को भी मौका मिल गया, आपको भी मिल जाए, लेकिन आपको दूसरों तक पहुंचने की जरूरत है। तो इससे ये भी पता चलता है कि एक तहरीक ये भी चलाई जाए कि जो बेचारे उर्दू सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको जो है तरगीब दी जाए कि आप इंग्लिश भी अच्छी तरह से सीखें। आपके लिए ही फायदे की बात है, उर्दू के लिए भी फायदा बात है, क्योंकि आप अगर जैसे कहा गया ना कि शेर तक में जुबान यार मन तुर्की नमी दानम। अब अगर हम किसी को अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं उसकी जुबान में तो पहुंचानी पड़ेगी। तो आपके लिए जरूरी है कि आप अगर तरक्की चाहते हैं तो दूसरी जुबान में भी आप कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह मायूसी की कोई बात नहीं है, आप जो है एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे। और एक बात बीच में ये भी आई कि जो मौजूदा जो दौर में जो असनाफ हैं उन असनाफ में खासी गिरावट आई है। आप ये महसूस करते हैं कि एक बॉडी ऐसी होनी चाहिए जो इसकी निगरानी करे। एक निगरां ग्रुप की कमी है जिसकी वजह से हर तरफ जो है जो चाह रहा है कर पा रहा है, इसकी वजह से कि एक कौमी सतह पर कोई निगरां ग्रुप नहीं है। अब जो जहां जैसे काम कर ले रहा है, अगर निगरां ग्रुप हो तो शायद जो है कुछ सुधार इसमें आए, ऐसा मैंने आपकी बातों से महसूस किया। और जो है तो ये 3 बात जो है मेरे जहन में आई, जो मैंने आपकी बातों से जो मुझे मिला वो मैंने आवाम तक पहुंचाई। इसके अलावा जो है आपको ये बता दें कि हमारी ये प्रोग्राम हर शनिचर के रोज इसी वक्त हुआ करता है, जिसमें हम मुख्तलिफ शोबों से कामयाब लोगों को बुलाया करते हैं और जो है उससे लोगों को फायजाब करने की कोशिश करते हैं। जो लोग कामयाब हैं उनको भी लोगों में इंट्रोड्यूस करते हैं। आप लोग हमेशा जो है हमारा ये जो रिकॉर्डिंग है इसको हमें अपने एक चैनल में अपलोड भी करते हैं। उस चैनल को आप जो है, इसका नाम है आइए कुछ अलग सोचते हैं, उसको जो है आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है और सारे लोगों तक ये बात पहुंचे। और यही बात करते हुए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर सफदर जमां कादरी। आप अल्लाह ताला आपको हयात जो है बुलंद करे और जिस नेक नियति से आप काम कर रहे हैं अल्लाह ताला आपको और जो है हिम्मत और इस्तक़लाल दे। आप जो है करते रहें और कौम को फैज़याब करते रहें। यहीं पर हम जो है इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं जो है, और इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। फिर कोई ग्रुप डिस्कशन होगी तो फिर मैं उसमें भी आपको लाऊंगा। आप हमें दुआओं से नवाजें और हमारे इस प्रोग्राम को आप जो मुस्तैर करें, लोगों में फैलाएं इंशाअल्लाह। सर कोई मिर्जा मोहम्मद साहब है, वो हैंड रेज उन्होंने कुछ लिखा है? नहीं, वो शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? जी अस्सलाम वालेकुम। अब कंक्लूड हो गया जी, ये मैंने कॉल किया था। याद मिर्जा साहब बोलिए, कोई बात नहीं है। एक्चुअली ये इसी सिलसिले में जो है मैं यहाँ पे हैदराबाद में काम कर रहा हूँ लैंग्वेज के ऊपर। उर्दू का भी जो है एग्जाम्स जो होने वाले हैं गवर्नमेंट के जॉब्स पे, तो
वो प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा हूँ और उर्दू स्पीकिंग वालों को जो है इंग्लिश भी सिखाने का जो है प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं। तो आई नीड गाइडेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम सर ऑल्सो, वही मैं ये बताना चाहता था। बिल्कुल, जैसी जरूरत हो आप राब्ता करेंगे। बिल्कुल, हम लोग सब एक ही काम कर रहे हैं, अलग अलग हल्के में कर रहे हैं, तो मिलजुल कर करें, कोऑर्डिनेट करके करें तो एक दूसरे को मदद भी मिलेगी और कुछ ज्यादा फ्रूटफुल वर्क करेंगे। तो बिल्कुल हम बेशक तैयार हैं, जैसी जरूरत होगी आप बिल्कुल मुझे आज ही जो है सर, आज ही सर मैं फिर सॉरी सर एक सेकंड में, शाहबुद्दीन अहमद साहब यहाँ मौजूद है। आप बज़्म सदफ इंटरनेशनल के मेरे ख्याल से चेयरमैन हैं या डायरेक्टर है। तो शाहबुद्दीन साहब का जो सवाल था वो बज़्म सदफ के हवाले से, अगर शाहबुद्दीन साहब और कुछ रोशनी डालना चाहते हो या कुछ और तो मैं चाहूँगा। यस यू कैन। आइए शाहबुद्दीन साहब। सर से तब तक मैं एक और सवाल पूछ लूं सर, अगर इजाजत। हाँ ठीक, कर लो कम। मैं चलो सर आप कंक्लूड कर रहे थे सर, आप पहले शायरी करते थे और आप शायरी क्या बिल्कुल ही तर्क कर दिए या आप शायरी करते हैं? ये जाती सवाल कर रहे थे। वो होता क्या है कि जब स्कूल के जमाने से अफसाना निगारी शुरू कर दी, फिर शायरी, फिर तनकीद और तहकीक एक ऐसी चीज है, और उसमें अगर तदरीस जुड़ जाए तो फिर किसी दूसरे काम के आप रह नहीं जाते। तो बड़ी मुश्किल होती है कि जो लोग मुख्तलिफ सिनफों में काम करते हैं उनको किस तरह से बैलेंस बिठाएं। कोई ना कोई जो जिंदगी का एक हिस्सा होता है, एक ख्वाहिश, एक गोशा, वो छूट जाता है। तो इस मामले में मैं बहुत ही कोशिश करने के बावजूद कुछ ना कुछ छूटता रहता है। शायरी मैंने जिसे गंडेदार कहते हैं उसी तरह से की, एक जमाने में खूब की, सैकड़ों गजलें छपी, फिर छूट गई। 10 बरस के बाद एक बार फिर नज़में लिखने लगे तो 25 नज़में तो एक साथ लिख दी, वो भी छपी, फिर भूल गए कि हम कभी शायर थे। तो गंडेदार शायर हैं, कभी जब मौका मिलता है तो शेर पढ़ देते हैं, कोई वो भी अपनी पसंद से नहीं, जब लोगों का कहना होता है तो शामिल हो जाते हैं। अब तो ये तनकीद और तनकीद बाद, अब जैसे अभी सफरनामा लिख दिया, इधर खाके बहुत हमने लिखे, तो इतने ढंग के काम हैं कि अब उसमें शायरी ही छूटती है। शायरी जरा दिल लगाने की चीज ज्यादा है तो वो छूट जा रही है। सर वो बात है ना, मकतबे इश्क के अंदाज निराले देखे, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। आप जो है सर एक और सर, हालांकि मैं हमको लग रहा है मैं कुछ ज्यादा सवाल कर दिया कि सर हम जैसे नए जो तालिब इल्म है सर, उनके लिए कैसे हम कंसंट्रेट करें, या फिर और भी जहाँ जो लोग हैं वो उनके लिए कोई पैगाम या कोई नहीं, बिल्कुल कंसंट्रेट, देखिए कंसंट्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप किसी बड़े राइटर को देखिए, आप तो भाई कलकत्ता से आते हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर, अगर उन और काजी नजरुल इस्लाम, दोनों की किताबों की फहरिस्त देख लीजिए तो समझ ही में नहीं आएगा कि ये शायर हैं, कि अफसाना निगार हैं, कि नॉवेल निगार हैं, कि मुतरजिम हैं, कि मुफक्किर हैं। हर तरफ उन्होंने कोशिश की। बड़े लिखने वालों की एक खास पहचान होती है कि वह जिसमें दिल लगता है वो काम करते हैं। आप हमारे यहाँ गालिब हैं तो गालिब की उर्दू शायर, उर्दू नस्र नगार, फारसी शायर, फारसी नस्र नगार, लुगत नवीस, इतनी हैसियत है। हमारे यहाँ उनके शागिर्द हैं हाली, तो हाली खाक सवाने नगार हैं, शायर हैं, मरसिया गो हैं, और उसके साथ साथ आप देखिएगा कि कई मैदानों में एक साथ काम कर रहे हैं। तो शायरी और नस्र या इतनी चीजें हैं, आदमी अपने इम्कानात तलाश करता है, कभी पता नहीं चलता है। कलकत्ता में ही पूरी जिंदगी गुजरी जमील मजहरी की, अब भी कभी कभी जब उनके अफसाने पढ़ते हैं जो शुरू के जमाने में उन्होंने लिखे थे, तो लगता है कि ये शख्स अगर अफसाना निगारी में कंटिन्यू करता तो जितना शायरी से जितना नाम हुआ, हो सकता था उससे बढ़कर नाम होता। तो ये किसी को समझ में नहीं आता है, करनी चाहिए। कभी कभी वक्त बदलता है तो आपकी चीजों को नए सिरे से दुनिया पढ़ती है,
اور مقام و مرتبے کا تعین ہوتا ہے۔ اقبال کے خطوط صرف جمع ہوئے تو وہ جو ہوتا ہے کہ 1500 صفحے کی کتاب اقبال کے اردو خطوط کی ہو گئی۔ اقبال نے نثر کی ترجمہ کیا، تو ہر آدمی اپنے امکانات تلاش کرے اور زیادہ کام کرے گا تو اس میں کوئی نہ کوئی اس میں گیتانجلی جیسی کوئی چیز نکل آئے گی، کوئی ایسی بدروہی جیسی نظم لکھ دے گا کہ معلوم ہوگا کہ پوری زندگی اس سے پہچان اس کو ملے گی۔ تو کام کرتے جانا چاہیے، طرح طرح کے کام کرتے جانا چاہیے۔ ادب سے وابستگی تو میرے خیال میں کسانی سے کم نہیں ہے۔ وہ کسان جو ہے موسم بدلتا رہتا ہے اور اپنا فصل جو ہے اگاتا رہتا ہے، ہر طرح کا فصل اگاتا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی ادب سے لگاؤ والوں کا یہی ہونا چاہیے، جس میں جہاں موقع ملے وہ جو ہے وہ کام کرتے چلے، جیسا سر نے کیا۔ ہر طرح کے اصناف میں آپ شامل ہوئے اور اس میں جو ہے اپنا ایک مقام بنایا۔ تو میرے خیال میں ادب سے جو لگاؤ رکھنے والوں کا بھی رویہ یہ ہونا چاہیے، جو جہاں سے کر سکتے ہیں کرتے جائیے، جیسا کہ آپ نے کہا اس بات کے۔ اور میرے خیال ہے کہ اب وقت ہوا چاہتا ہے اور یہیں پر اب جو ہے ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ شامل ہوئے۔ اور جو ہے پھر میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ ویڈیو جو ہے ایک ہمارا ایک چینل ہے آئیے کچھ الگ سوچتے ہیں، اس میں جائے گا۔ آپ تمام حضرات سے اس کو جو ہے سبسکرائب کرنے کی درخواست ہے۔ اور یہ سلسلہ جو ہے ہر سنیچر کے دن 7 بجے ایک پروگرام ہوا کرے گا مسلسل انشاءاللہ۔ اور جو ہے آپ تمام حضرات سے شرکت کی گزارش ہے، اس سے جو ہے پروگرام جو ہے مسلسل چلتا رہے اور لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ یہ میری خواہش بھی ہے، اگر آپ کی دعائیں بھی شامل حال نہیں اور آپ کا تعاون بھی رہا شامل ہونے کی وجہ سے، تو انشاءاللہ یہ پروگرام بھی لوگوں تک پہنچے گا۔ اور یہ آج کے دور میں جو ہے بچوں کی رہنمائی، انسپریشن دلانا، موٹیویٹ کرنا ایک بہت ہی اہم ضروری کام ہے۔ میں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے کہ لوگوں کی زندگی سے لوگ بچے سے سبق سیکھیں اور لوگوں کی زندگیاں بھی تمام لوگوں کے میں کلیئرلی واضح ہوں، تو دونوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے میں نے پروگرام شروع کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب جو ہے مجھے اس پروگرام کو یہاں ختم کرنا چاہیے۔ تمام شکر گزار ہوں اور پھر یہاں سے میں الوداع کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔